almost 1.5 crore people right now are pursuing either a BA or a BBA or a BCom. तीनों से कुछ नौकरी नहीं लगती है. If we talk about the IIMs, so how Hive is doing the comparison? एक IIM के अंदर let's say अभी भी कोक की केस स्टडी होती होगी, डाबर की केस स्टडी होती होगी. Typically the kind of case studies that we pick up is the D2C brands of today. Alright. So I think ये हमारे तीन focus होते हैं. The first one is the kind of outcome and the ROI it provides to the students, which is placements obviously. Second is alumni community, which is when the students are actually getting deployed in the jobs, how are they performing in the job? Number three is actually, which is not given so much importance in India, but I feel कि in the next 3 or 4 years, specifically in education, इसको बहुत importance दिया जाएगा, which is Hello everyone, so welcome on द मृदुल परमार शो. और आज हमारे साथ हैं भाई निखिल गौर जी, जो कि हैं फाउंडर हाइव बिजनेस स्कूल के. सो लेट मी टॉक अबाउट हाइव. सो हाइव इज द फर्स्ट बिजनेस सेल्स बी स्कूल इन इंडिया, जो कि बहुत रैशनली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत वायरल हो रहा है. सर की बहुत सारी रील्स भी वायरल हुई हैं, जो कि आप सब लोगों ने देखा ही होगा. सो आज हम बात करने वाले हैं यार सेल्स के बारे में, बी स्कूल्स के बारे में, क्या फ्यूचर हो सकता है इनका आने वाले टाइम में, और क्या चीजें हम अलग कर रहे हैं जो हमें एक यूनिक फैक्टर देती हैं बाकी भी स्कूल्स में. सो मैंने ना रिसेंटली आपके मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, और उसमें मैंने एक चीज पढ़ी थी जिसमें आपने बोला कि 2030 तक यू विल बी कमिंग इन टॉप 20 बी स्कूल्स इन इंडिया. सो व्हाट इज योर से ऑन दैट? लाइक व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी? क्या आप सोच रहे हैं, कैसे आप बिल्ड कर सकते हैं? super. Let's talk about it. Awesome. Thank you, Mridul, firstly, for having me on the show. I think I've seen your work and super excited to be here. Apart from that, I think being in top 20 by 2030, वो I think एक हमारा personal aspiration है. This is something that we all chase as our internal North Star metric as a part of Hive School. I think strategy बहुत simple है कि जब भी आप किसी business school को देखते हो, our business school is driven by 2 or 3 most important factors. The first one is the kind of outcome and the ROI it provides to the students, which is placements obviously. Exactly कितनी strong placements आपकी हो रही हैं. Second is alumni community, which is the kind of people when the students are actually getting deployed in the jobs, how are they performing in the jobs? कितना retention है jobs के अंदर, कितना attrition है jobs के अंदर, कितनी तेज वो actually grow हो रहे हैं jobs के अंदर. Number 3 is actually, which is not given so much importance in India, but I feel कि in the next 3 or 4 years, specifically in education, इसको बहुत importance दिया जाएगा, which is pedagogy. कि किस तरीके से actually पढ़ाया जा रहा है and कौन actually आके पढ़ा रहा है. कौन से टाइप की केस स्टडीज एक्चुअली बी स्कूल्स के अंदर पढ़ाई जा रही हैं? क्या वो 1917 की कंपनीज की केस स्टडी है, या फिर वो आज के D2C या फिर कंज्यूमर ब्रांड्स या फिर SaaS ब्रांड्स की केस स्टडीज हैं? सो आई थिंक ये हमारे 3 फोकस होते हैं. कि फर्स्ट फोकस है कि एवरी सिंगल स्टूडेंट हुज कमिंग इनटू हाइव स्कूल, दे नीड टू गेट द स्ट्रॉन्गेस्ट आउटकम दैट दे कैन डिजर्व, व्हिच इज कि अगर एक फ्रेशर आ रहा है जो 3-4 लाख रुपए कमाता है, या फिर लेट्स से उसकी फर्स्ट जॉब है, can we get them to a 15, 16, 17 LPA role? If let's say someone who's coming with 9 or 10 LPA pre-MBA experience, can we get them to a 20 plus LPA role maybe after their MBA? So at least take 2 से 3x का elevation from an ROI standpoint. If we just look at CTC is what we focus on. That's number 1, which is placements. Number 2, कितना strongly एक student basically जाके retain करता है job में and कितना अच्छे से perform करता है. अभी तक in the last अब 2 साल हो गए मैं बिजनेस के अंदर, द फर्स्ट कोहॉर्ट स्टूडेंट दैट एक्चुअली गॉट आउट ऑफ हाइव स्कूल, व्हिच इज द ऑनलाइन कोहॉर्ट स्टूडेंट्स, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स एक्चुअली यूएस जा रहे हैं, वहां पे कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स इंटरनली प्रमोट हो गए हैं, किसी का सीटीसी इंक्रीज हो गया है, तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जो लेट्स से फर्स्ट कोहॉर्ट से स्टूडेंट्स निकले हैं. तो आई थिंक उधर से एक स्ट्रॉन्ग एलुमनाई कम्युनिटी निकलेगी. एंड थर्ड जो पेडागोजी है, आई थिंक वो हम एक न्यू एज बी स्कूल है, तो न्यू एज बी स्कूल्स तो माने ही पेडागोजी के लिए जाते हैं. तो आई थिंक ये हमारे 3 फर्स्ट प्रिंसिपल्स है जिन पे हम फोकस कर रहे हैं. एंड इफ यू जस्ट कीप डूइंग थिंग्स राइट, वी फील की गेटिंग इनटू टॉप 20 और टॉप 30 बी स्कूल्स ऑफ इंडिया बिफोर 2030 शुड नॉट बी अ टफ जॉब, क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा है. मतलब अभी जो एग्जिस्टिंग हमारे बी स्कूल्स हैं, 10-15 बी स्कूल्स के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग काम नहीं हो रहा है इन टर्म्स ऑफ पेडागोजी, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ आउटकम्स. एंड लिटरली वो 60 बी स्कूल्स हैं इंडिया के अंदर जहाँ पे एक्चुअली प्लेसमेंट्स होती हैं आउट ऑफ 5000 बी स्कूल्स. तो वो 60 बी स्कूल्स के बाद तो पूरा का पूरा गैप है. Correct. So with every new age B school coming in that is providing outcomes, that is getting students to extremely strong jobs, and is also improving pedagogy, I think that route to getting into top 60, top 50, top 30, top 20, top 10, it can be anything for that matter of fact, becomes more easier. So हमारा first principles basically ये thought है to get to top 20. So if we talk about the pedagogy and the basically the idea, can we also deep dive into that fact कि जो top 20 B schools है और जो Hive है,
if we talk about the IIMs or the top B schools, so how Hive is doing the comparison, Correct. and how is your vision aligning with that thought कि आप 20 top 20 B schools में भी आप आ सकते हैं? Correct. So how do you think about that? Correct. Yeah, I think comparison कोई नहीं है with IIMs. We're not even competing with IIMs. I think we're trying to create our own pedagogy. Correct. And we're trying to create our own base, our own niche overall. I think IIMs, at least if I talk about IIM Black Eyes, which is Bangalore, Lucknow, Ahmedabad, Kozhikode, Indore, Calcutta, वो सब काफी अच्छा काम कर रहे हैं. And we don't even say कि let's say anyone who's getting into IIM Black Eyes, I think please go for it. I think they've been here for a long time, and obviously we being a 2-year-old B school, we can definitely not replace the kind of pedagogy, the kind of brand value that they've been able to create for the last 25 or 30 years now. What we are trying to do here is कि we are trying to create our own space in the industry, and how we are doing it is by once again providing the right outcomes to the students, which is focusing on every single student who's coming into Hive school, giving them the best pedagogy. For example, एक IIM के अंदर let's say अभी भी कोक की केस स्टडी होती होगी, let's say एक IIM के अंदर अभी भी डाबर की केस स्टडी होती होगी, या फिर 1970s के ब्रांड की केस स्टडी होती होगी. हमारे college के अंदर typically the kind of case studies that we pick up is the D2C brands of today, are the SaaS companies of today, are the GTM avenues of today. Apart from that, the kind of people who also come and teach are actually the people who are operators, मतलब जो अपनी companies में already वो काम कर रहे हैं and वही फिर आके पढ़ा रहे हैं. जो हमारी flagship faculty भी है, वो usually कोई PhD नहीं होती है, मतलब hardly we have a PhD professor coming and teaching, because उनके पास industry experience इतना ज़्यादा नहीं होता है. Alright. Once again, the people who are doing it 100%, I think they might be doing a good job for sure, but हमें लगता है कि अगर आप मार्केटिंग पढ़ रहे हो और वो भी D2C मार्केटिंग पढ़ रहे हो, तो वो कोई CMO ऑफ D2C ब्रांड को आके पढ़ानी चाहिए. Correct. उसके अंदर भी अगर आप SaaS के अंदर B2B मार्केटिंग पढ़ रहे हो, तो वो किसी SaaS के हेड ऑफ अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग को आकर पढ़ानी चाहिए. तो स्पेसिफिकली हम बहुत डीप डाइव कर रहे हैं अक्रॉस इंडस्ट्रीज कि अगर D2C पढ़ा रहे हैं तो D2C में D2C स्पेशलिस्ट आके पढ़ाए, अगर SaaS में सेल्स पढ़ा रहे हैं तो SaaS में कोई सेल्स में जो हेड है वो आके पढ़ाए, अगर D2C या कंज्यूमर में रिटेल सेल्स पढ़ा रहे हैं तो उसमें कोई हेड ऑफ रिटेल सेल्स आके पढ़ाए. तो वी आर गोइंग वेरी स्पेसिफिक अक्रॉस इंडस्ट्रीज, अक्रॉस फंक्शंस, and those are the kind of people who are actually coming in and teaching. So I think ये थोड़ा difference है in terms of a pedagogy. So we don't compete with IIMs. I think we have our own style of doing things. Yeah. We have our own base of doing things. And we just want to do those things in the right way. Correct. So top 20 is just an aspiration कि वो होना हुआ तो हो जाए. Vision है. Vision है कि top 20 में जाना है. वो aspiration है. But उसके पीछे का process क्या है? वो first principle process यही है कि सही outcome से पहुंचाते रहो. सही आउटकम्स तक जाने का प्रोसेस जो हमने ले डाउन किया है, जो मैंने बताया अभी, वो बेसिकली ये है. तो हमने प्रोसेस को हम सही रखते हैं, फिर देन व्हाटएवर हैपेंस इज बेसिकली एन आउटकम टू कम. सो बेसिकली मेरे को जो पता चला है कि हाइव ने एक्चुअली गैप्स फाइंड आउट कर लिए हैं कि क्या गैप्स हैं. अब मार्केट में अगर आप वही पुरानी 19s वाली जो स्टोरीज है, वही अगर आप केस स्टडीज पढ़ाओगे तो एक्चुअली पीपल विल नॉट लव इट. वो रेजोनेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, बट आज के 2026 में यू हैव टू टॉक अबाउट मोर D2C ब्रांड्स जो एक्चुअल में हो रहा है. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पे आता है कि हमने जो आपकी प्लेसमेंट्स देखी हैं वो मेजरली D2C ब्रांड्स में हो रही है, SaaS बेस्ड कंपनीज है जो कि अमेरिकन कंपनीज है. करेक्ट. सो आर यू गाइज लाइक शिपिंग योर प्रोडक्ट्स जो आपके गिनी पिग्स हैं, जो आपने अच्छे से उनको बनाया है, क्यों कराया, उनको पूरा समझाया और उनको फिर आप अमेरिकन कंपनीज में एक्सपोर्ट कर रहे हो? नहीं ऐसा नहीं. So I'll give you some context of exactly how placements are happening. So हमारे पास दो इंडस्ट्रीज हैं, एक B2C है और एक B2B है. B2C मतलब जो कंज्यूमर को बेचती है, B2B मतलब जो बिजनेस को बेचती है. B2C के अंदर हमारे पास 3 टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल्स है, कंज्यूमर टेक एंड कंज्यूमर सर्विस एंड D2C. कंज्यूमर टेक मतलब एंड टू एंड एक सर्विस बेचते हैं बट टेक्नोलॉजी से एनेबल्ड है. फॉर एग्जांपल जोमैटो आपको फूड डिलीवर करता है बट एंड टू एंड इज एनेबल्ड बाय टेक्नोलॉजी. Consumer service is let's say something like a urban company, जहाँ पे end-to-end service is enabled by technology, but someone is coming and serving you at your home. For example, if you're booking a salon service at home, and it's a consumer service. Absolutely. Third is D2C, मतलब कोई भी tangible product, let's say like a watch, आप एक कंज्यूमर को डायरेक्टली बेचते हो तो वो D2C है. तो वो एक फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज है जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को प्लेस करवाते हैं. अब इसके अंदर 2 कैटेगरीज ऑफ रोल्स निकल के आते हैं. एक है कि एक D2C ब्रांड बेसिकली बेचेगा कैसे, या तो वो ऑफलाइन बेचेगा रिटेल स्टोर्स के थ्रू, तो यहाँ पे निकल के आता है ऑफलाइन मार्केट प्लेस रोल्स, रिटेल एक्सपेंशन रोल्स. इट कैन बी फाउंडर्स ऑफिस, इट कैन बी सेल्स रोल्स, इट कैन बी GTM रोल्स, बेसिकली एनीथिंग ऑन दोस लाइंस. सेकंड इज या तो आप इसको लोगे ब्लिंकिट से या फिर Amazon से या फिर फ्लिपकार्ट से, जैसे खुद की वेबसाइट से. अब लेट्स से अगर आप वॉच सर्च करते हो,
तो अगर आप वॉच Amazon पे सर्च करते हो तो आपके पास एप्पल वॉच सबसे ऊपर आनी चाहिए. So that's typically an online marketplace role, which is e-commerce marketeers, quick commerce marketeers, online marketeers. उसको typically हम अपनी भाषा में बोलते हैं key account manager roles for specific marketplaces. वो second category of roles हैं जिसमें लोग जाते हैं. अब third type of company, जैसे अगर कोई startup है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता अलग अलग मार्केट प्लेसेस के लिए अलग अलग बच्चों को एलोकेट करना, तो वो एक फाउंडर्स ऑफिस हायर कर लेता है. वो थर्ड कैटेगरी ऑफ रोल्स हैं. ये है B2C, विच इज बिजनेस टू कंज्यूमर. ये D2C ब्रांड्स और कंज्यूमर टेक ब्रांड्स और कंज्यूमर सर्विस ब्रांड्स सारी इंडियन कंपनीज ही होती हैं. फॉर एग्जांपल डोफुल ने अभी फोर्सकॉर्ड से हायर किया है. इट्स एन इंडियन कंपनी. Zomato actually ran a process with us. That's an Indian company. Apart from that, Culture Circle has hired someone. Shark Tank brand. That's an Indian company. Yatra is an Indian company hired from the first cohort. जो second category of companies है वो है B2B. अब B2B में 3 एंगल्स निकल के आते हैं. एक होता है B2B SaaS, एक होता है B2B सर्विस और एक अब जो आ रहा है वो है B2B AI. B2B SaaS है कि आप एक सॉफ्टवेयर हो और वो सॉफ्टवेयर आप किसी और कंपनी को बेच रहे हो. फॉर एग्जाम्पल Adobe ultimately might be a global company but also has an entire Indian office. Okay, so typically अब Adobe में अगर कोई स्टूडेंट काम कर रहा है तो वो ultimately Indian office में ही काम कर रहा है. But Adobe बेचता US clients को भी है. MNC but still they have MNC but they working also office. Yes. So that is typically the kind of companies or the kind of roles that we get people placed into. अब जो B2B का segment है वो इंडिया के अंदर it's very tough to sell a B2B service or a B2B software or even B2B AI. There's so much problem that come in if in case you're selling a B2B subscription, specifically in India. तो जो B2B सब्सक्रिप्शन का PMF है वो एग्जिस्ट ही यूएस के अंदर करता है. एंड हेंस स्टूडेंट्स माइट बी वर्किंग इन इंडियन बेस्ड कंपनीज बट दे आर सेलिंग इन द यूएस मार्केट्स. सो दैट इज टिपिकली लेट्स से व्हाट वी मीन व्हेन वी से द स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन द यूएस मार्केट और द यूके मार्केट और द यूरोपियन मार्केट कि वो इंडियन कंपनीज में काम कर रहे हैं या फिर लेट्स से वो यूएस कंपनीज में काम कर रहे हैं जिनके इंडियन बेसिस है, तो वो काम यहीं से कर रहे हैं, बस वो बेच यूएस के अंदर रहे हैं बिकॉज उधर एक B2B मार्केट का PMF अभी बेटर एग्जिस्ट करता है. सो ये हमारा पूरा प्लेसमेंट का स्ट्रक्चर है करेंटली. सो या दैट्स व्हाट द प्लेसमेंट्स आर अबाउट. ऑलराइट, करेक्ट. सो on YouTube, so there is a statement given by your own co-founder Simran. क्या बोल के आ गया? He said कि भाई निखिल भाई ना बहुत टॉक्सिक है और इनके साथ ना काम नहीं करा सकता. So what is your take on this statement? Or do you think that कि आपकी जो वर्क लाइफ है उसपे ये ट्रेड एग्जैक्टली है? यू हैव एक्चुअली फाइंड इट कि ये प्रॉब्लम है बट आपको ये पता है कैसे फिक्स हो सकता है बट आप ये करना नहीं चाहते हो. यार ये इसने बेसिकली शार्क टैंक में सिमर ने बोला था, तो उसने वो मजाक में बोला था. अब वो क्या हुआ शार्क टैंक के बाद पता नहीं ये न्यूज आर्टिकल्स वगैरह ने उठाया वो और उन्होंने उसकी हेडलाइन छाप दी कि अ को-फाउंडर कॉल्स देयर शार्क टैंक देयर पीयर को-फाउंडर टॉक्सिक ऑन शार्क टैंक इंडिया. और उधर से फिर ये बेसिकली थोड़ा बहुत ट्रैक्शन पे आ गया था. बट ऐसा मतलब आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली व्हाट ही फील्स अबाउट इट, बट स्टार्टिंग में जब हम काम कर रहे थे तब डेफिनेटली बहुत ज्यादा काम होता था. तो उस टाइम पे बेसिकली हम मेरे घर से काम करते थे. तो मेरा 3 BHK जो है वहीं पे मेरे पेरेंट्स यूज्ड टू स्टे and my 2 rooms were basically my office. All right. And what I used to do here was जब भी हमारा कुछ important discussion चल रहा होता था ना, just to ensure कि discussion के बीच में basically कोई gap ना आए, तो मैं room lock कर देता था कि यार अब 2 घंटे बैठ के discussion ही करेंगे, यहाँ पे कोई chain of thought break नहीं होना चाहिए. तो वो फिर प्रबल ने शार्क टैंक पे बोला, उसके ऊपर फिर सिमर ने उसको बस मजाक में टॉक्सिक बोल दिया and hence it basically came out that way. But अभी I think things are a lot more sorted, which is we're not that erratic at this point of time because now we can afford more people to basically work for us and the more people let's say who are working towards the vision together. तो पहले obviously बहुत काम होता था because बस 3 लोग थे जो actually startup कर रहे थे and 4th Simran who heads the program at Hype School वो कर रही थी साथ में. तो 4 लोग की कंपनी में तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? Obviously बहुत ज्यादा erraticness होगी. But अभी जैसे जैसे employees आ रहे हैं, जैसे टीम स्केल हो रही है, now we are a team of, we call ourselves a cricket team which is a team of 11 people. We're hiring 7-8 more people, so now the team is going to be almost 20-25 people next. तो अब चीजें स्ट्रक्चर हो रही हैं, प्रोसेस स्ट्रक्चर हो रहे हैं. सो नाउ ऑब्वियसली उतना इराटिक नहीं है जितना इराटिक हम पहले होते थे. सो इफ दैट मे बी हेल्प्स यू टू कॉल मी लेस टॉक्सिक, सो आई एम लेस टॉक्सिक नाउ as compared to let's say how toxic I used to be maybe 2 years back. Simar bhai can agree on this part that you are not toxic now. Maybe not toxic anymore. पहले बोल सकते हो let's say toxic था. So yeah, it's crazy. So let me also talk about the thing कि ये चीज भी बहुत फेमस हुई थी कि आपने एक रील बनाई थी और उसमें आपने ना सुबह 5 o'clock आप पहुंच गए थे कैंपस और उसमें हमने पूरा कैंपस टूर दिया. Correct. एंड यू लाइक टेल द ऑडियंस अबाउट द रियल ग्राइंडिंग कि भाई जो रात को 2-3 बजे रैंडम थॉट्स आते हैं कि भाई कल को अगर ये स्टार्टअप है नहीं चला, हाइप बंद हो गया तो मैं क्या करूंगा. और ये जो हॉन्टिंग फेयर है ना ये भाई खा जाता है कि भाई नहीं रह सकता.
तो आदमी जैसे ही उठता है तो ही स्टार्ट लाइक एक्टिंग ऑन द वेरी फर्स्ट थिंग व्हेन ही वेक अप। करेक्ट। तो भाई आप उठे और उसके बाद पहुंचे। यार, तो मैं बताता हूँ कि मैं ना सो ही नहीं पाया था उस रात। अच्छा। तो कुछ फटा था बिजनेस के अंदर एंड मेरे को पूरी रात नींद ही नहीं आई। मतलब आई कुड नॉट स्लीप इवन लाइक ड्यूरिंग द एंटायर नाइट। और मेरे को एंग्शियसनेस हो रही थी 4 बजे 4:30 बजे। तो लाइक कि अब मैं या तो लैपटॉप लेके यहीं पे घर पे अपने रूम में बैठ के सॉल्व करूँ। अब उसमें तो ऑब्वियसली आपके थॉट्स और एराटिक ही होंगे। तो मैं सोचा कि गाड़ी उठाता हूँ और ऑफिस चले जाता हूँ, वहीं पे जाके काम करता हूँ आराम से। फिर मैं पहुंचा अराउंड 5 बजे सुबह ऑफिस। तो मेरे को तो यार इतनी फटी हुई है मतलब बिजनेस के अंदर, लाइक इससे ज्यादा तो क्या ही फट सकती है आपके बिजनेस के अंदर। सो मैंने सोचा कि लेट मी जस्ट रिकॉर्ड दिस एंड लेट मी पुट इट आउट ऑन इंस्टाग्राम वंस, नॉट फॉर द ऑडियंस टू सी इट। मेरे को कोई इंटेंट नहीं था कि वायरल हो जाए या फिर ऐसा कुछ हो जाए। मेरे को था कि लेट्स से वंस थिंग्स गेट सॉर्टेड, नो, जस्ट आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड आई विल जस्ट कम बैक एंड वॉच दैट रील कि इतनी चीजें फटी हुई थी, अगर यहाँ से हमने रिकवर कर लिया तो किसी भी चीज से रिकवर लेट्स से हम कर जाएंगे। और वो फिर लाइक पीपल स्टार्ट कनेक्टिंग विद इट, लाइक द फाउंडर्स स्टार्ट कनेक्टिंग विद इट कि यार हमारे साथ भी सेम होता है। जो एस्पिरेशनल फाउंडर्स थे उन्होंने कनेक्ट करना शुरू किया, जनरल लोगों ने कनेक्ट करना शुरू किया, फटते फटते फट गई। बट ये यूजुअली बहुत होता है कि जब भी स्ट्रेस होता है, मेरे को नींद नहीं आती, अब रूम में बैठ के तो या तो 2 ऑप्शन होता है, तो रूम में बैठ के सॉल्व कर लो या फिर किसी कॉफी शॉप चले जाओ या फिर अपने ऑफिस चले जाओ। अब कॉफी शॉप रात को मेरे तो आसपास में खुली नहीं थी तो मैं ऑफिस चला गया। तो वो सिंपल, it was just as simple as that, nothing more so than most of the people like call it a rage bait, and many people call it as a like a hustle porn. So it was like that. It was nothing like, it was just, it was a very candid reaction from my end, which is I was not able to sleep in the entire night. I just thought of picking up my laptop and going to the office and working from there so that I can prevent my anxiety, nothing more than that. भाई it actually I'll tell you one thing कि ये ना हमारे साथ भी होता है। So एक दिन मैंने ना इसको फोन करा शेष को और हमारे पास ना एक रैंडम थॉट आया। So मैंने बोला यार इसको ना अभी बनाते हैं, फटाफट खोलते हैं और let's make it। तो भाई सुबह के ना 3:30 बज रहे थे और हमें रैंडमली एकदम से आइडिया आया। और इतने टाइम से ना वो जब हम प्लान कर रहे थे ना वो कंटेंट ना निकल के नहीं आ रहा था। जब आप देखते हो ना फाइनल प्रोडक्ट, आप बोलते नहीं यार समथिंग इज मिसिंग, वो मजा नहीं आ रहा, वो पार्ट ना आ नहीं रहा। भाई हमने 3:30 बजे, आप मानोगे नहीं, वी शूट एट लाइक 3 fucking AM in the morning, और उसके बाद जो वो कंटेंट निकल के आया ना, इट वाज लाइक माइंड ब्लोइंग। टिपिकल फाउंडर थिंग। सो टिपिकल कि मतलब हमारे ना सबके जो ब्रेन और एकदम से काम जो करता है ना, वो मुझे लगता है 12 PM के बाद ना एक्चुअल में एक्टिव होते हैं। करेक्ट। और जितने हमारे नर्वस सिस्टम है, जो न्यूरॉन्स है ना, वो सबसे ज्यादा एंशियसली तभी एक्टिव होकर काम करते हैं। आई थिंक डिपेंडेंट भी है कि जिस जो इंसान बायस टू एक्शन तेज रखता है, उसको 3 बजे भी आएगा तो फटाफट 3 बजे भी लैपटॉप खोल के बैठ जाएगा। इट कैन बी हेल्दी, इट कैन बी नॉन हेल्दी, बट मे बी the two of us operate in a similar fashion, which is our bias to action is super quick. कि अगर हमें 3 बजे 4 बजे कुछ भी आएगा तो हम ऐसे खोल के बैठ जाएंगे। मेरे को नहीं पता वो हेल्दी है फिर नॉन हेल्दी है, बट it works well maybe for the both of us. Correct, absolutely. So what do you think, like अभी for example दो चीजें पे फोकस करते हैं हम। ये जो बंदा है ये बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, ये सारी चीजें करना चाहता है, इसके पास गोल्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, विजन्स हैं, बट जब ये काम करने बैठता है ना तो ये काम नहीं कर पाता। बट डिसिप्लिन्ड है। अच्छा, काम करना चाहता है, गोल्स हैं, एम्बिशियस भी है, बट जब ये काम करने बैठता है तो काम नहीं कर पाता, फोकस नहीं कर पाता। एस्पिरेशनल है बट डिसिप्लिन्ड है। डिसिप्लिन्ड एस्पिरेशनल बोल सकते हो, बट जो गोल है ना वो मीट नहीं हो पा रहा। वहीं आता है कि एक रैंडम बंदा आप मेरे जैसा जो डिसिप्लिन नहीं है, एस्पिरेशनल है, काम वो तब करता है जब वो करना चाहता है। ठीक है, वो इसलिए काम नहीं करना है क्योंकि उसको काम करना है, उसको काम इसलिए करना है क्योंकि वो काम कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ए और बी जो पर्सनालिटीज हैं, कौन सी ज्यादा रेजोनेटिंग है आज के स्टार्टअप कल्चर में, और कौन सी चीजें एक्टिवली पार्टिसिपेट करके वो चीज आप जल्दी खत्म कर सकते हो? I'll give you maybe the theory that typically I believe in, and उसके बाद let's say आप plug and play कर लेना कि कौन सी personality पे relate हो पा रही है। Done. So मैं एक book में actually ये है भी Atomic Habits में। So if let's say for example हमने इस साल का हमारा टारगेट रखा हुआ है 15 करोड़ रुपए, ठीक है, कि हमें 15 करोड़ का टॉप लाइन हमें टच करना है। अगर आप इसको सोचते रहोगे ना 15 करोड़ तो कुछ नहीं होने वाला। बट व्हाट यू गॉट टू डू हियर इज व्हाट इज द प्रोसेस and what is the structure behind going for getting let's say to that 15 crore, not the structure even monthly कि हर दिनचर्या में आपको exactly क्या करना है। So let's say मेरे को हर दिन उठ के क्या करना है ताकि मेरा कुछ भी ब्रेक ना हो एंड मेरी बिजनेस के अंदर चीजें मूव हो। सो लेट्स से मेरे को 2.5 घंटे हडल्स लेने हैं कि मेरे को हर टीम मेंबर के साथ बैठना है, मेरे को मार्केटिंग टीम के साथ बैठना है, एडमिशन टीम के साथ बैठना है, प्रोग्राम के साथ बैठना है, कंटेंट के साथ बैठना है, फाइनेंस के साथ बैठना है, ताकि सब कुछ मेरा स्मूथ चलता रहे।
ठीक है, मेरे को हर दिन उठ के बेसिकली अपना जो मेरी एडमिशन पाइपलाइन है वो देखनी है, जो मेरी प्लेसमेंट्स करंट स्टूडेंट्स की चल रही है let's say, वो देखनी है, जो मेरी मार्केटिंग और मेटा स्पेंड्स चल रही है वो देखना है, ताकि वो चीजें मूव होती रहे। मेरे को हर दिन लेट्स से करिकुलम के ऊपर काम करना है। तो बेसिकली अगर मैं एक एजुकेशन बिजनेस बना रहा हूँ तो मैंने एक प्रोसेस ले डाउन कर लिया कि एवरी सिंगल डे व्हाट इज इट दैट मे बी आई नीड टू डू so that number one, nothing breaks in my business. Number two, things also move in my business. All right. Now, I do have a vision, which is, let's say, maybe I need to go to 15 crore in terms of top line. But at once, I have been able to lay down this dincharya of mine or this day routine of mine. अब मेरे को बस सुबह उठ के वो सेम डे रूटीन रोज फॉलो करना है। मेरे को कुछ लेफ्ट एंड राइट नहीं करना। और मेरे को हर लेट्स से 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में एक बार इंट्रोस्पेक्ट करना है कि ये क्या चाह रहा है, सही चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, इज इट वर्किंग और नॉट वर्किंग, विल आई बी एबल टू अचीव दिस और नॉट। बस इंट्रोस्पेक्शन करना है। तो आई थिंक एक रूटीन फिक्स करो और वो रूटीन थोड़ा सा उसको चेस करना चाहिए, जैसे जो आप एस्पायर कर रहे हो, एंड इंट्रोस्पेक्ट करो कि यार हर 2-3 हफ्ते में कि क्या ये काम कर रहा है फिर नहीं कर रहा है। डोंट थिंक अबाउट कि ये विजन मेरे को अचीव करना है। अरे विजन अचीव होगा कैसे, मतलब हर दिन क्या करना पड़ेगा फॉर यू टू बी एबल टू अचीव दैट विजन। इस घंटे में क्या करना पड़ेगा फॉर यू टू बी एबल टू अचीव दैट विजन। वो 9 घंटे एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा, वो 9 घंटे का बेसिकली एक फॉर्मेट, एक रूटीन बनाओ, वो कैलेंडर पे डालो। रोज बस आपको 9 घंटे वही करना है और लेफ्ट एंड राइट कुछ भी नहीं करना है। So this is what basically I feel कि for you to be able to get success in today's startup culture, this is super important, which is people get so much distracted कि मेरे को $1 billion कंपनी बनानी है, मेरे को $1 million वैल्यूएशन चाहिए, या फिर let's say मेरे को इतने पैसे रेज करने हैं, but that's all secondary. Ultimately the needle should move in the business and you should be focused on moving that needle every single day. तो उस पे फोकस करो बस, बाकी सब कुछ मेरे को लगता है secondary. That's the ideology maybe that I operate on. I can be wrong also. So yeah. So rightly said, as atomic habits में जो चीज़ है ना, मैं उसको थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो उसमें एक कॉन्सेप्ट बताया ना कि आप rather than focusing on the things that you actually want to do, actually focus on the system. yeah, correct. आप हैबिट्स को ठीक नहीं कर सकते यार, वो एक बार बन चुकी हैं। correct. आपको सुबह उठना है तो सिंपल है, अलार्म लगा उठो। आप उसके बारे में सोचोगे, वो करोगे, वो नहीं होगा। सो स्टार्ट ट्रीटिंग योर ट्रिगर्स, उनको खत्म करो एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन द सिस्टम्स। आप अगर डेली 1% भी कर रहे हो, तो वो आप अपने आप को अगर ईयरली आप देखोगे तो 37 टाइम्स आप इंप्रूव कर रहे हो। ओवरली विद द पीरियड ऑफ टाइम जब आपके ईयर ऑन ईयर बढ़ेगा तो वो एक्चुअल में हैबिट आप बिल्ड कर लोगे। तो दैट्स व्हाई दिस इज द बेस्ट थिंग कि आप जो विजन सोच रहे हो उसको अकाउंटेबल होल्ड भी आपको ही करना है। आई एग्री। तो वो उन सिस्टम्स पे आप काम करना जब चालू करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि, और जो सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन वाला थॉट है, दैट इज लाइक टोटली आई एग्री विद इट। बिकॉज जब आप खुद से सेल्फ रियलाइज करते हो ना कि कहाँ पे फकअप्स हो रहे हैं या कहाँ पे आपको डबल डाउन करना है, किन चीजों को आपको हटाना है, तो आप इजी टू एग्जीक्यूट वाली चीजें पकड़ो। आई एग्री। जो एक्चुअल में काम नहीं है भाई, उनको मत डालो लिस्ट में। वो टू डू लिस्ट में फालतू की चीजें हम डाल के वो हम नहीं कर पाते हैं, फिर एट द एंड ऑफ द डे इट्स लाइक गिल्ट, बस दिमाग क्लटर करते रहते हैं। हाँ कि भाई यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, नेक्स्ट डे इज लाइक गॉन। मेक थिंग्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। थिंग्स आर सिंपल इन जनरल आल्सो, जस्ट नीड टू लुक देम इन द मोस्ट सिंपलेस्ट। एब्सोल्युटली। सो यार मेरे को ना आपका शार्क टैंक पिच देखा था। यस तो वो तो बहुत क्रेजी था। शार्क टैंक में आप लाइक हाउ वाज द एक्सपीरियंस, लाइक फर्स्टली कैसा? वेरी नाइस, वेरी गुड एक्सपीरियंस। आई थिंक शार्क टैंक ने इतनी अच्छी मार्केटिंग दी हमें, इतनी अच्छी ब्रांडिंग दी हमें कि हम आज तक उसका लेवरेज उठाते हैं। तो आई थिंक नथिंग कैन रिप्लेस शार्क टैंक। मैं बोलता भी रहता हूँ आई थिंक इंटरनली टीम को कि उसने हमें 2.5 साल बिजनेस में आगे ले गया। फॉर एग्जाम्पल हमारा प्लान था हमेशा ऑफलाइन कॉलेज शुरू करने का। हमने स्टार्ट एक ऑनलाइन प्रोग्राम से किया था, बट हम बूटस्ट्रैप वेंचर हैं तो हमने कुछ पैसा रेज नहीं किया हुआ है। तो हमारे लिए था कि हम पहले कॉर्पस इकट्ठा करेंगे हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम से, उसमें ब्रांड बनाएंगे, उसके बाद फिर हम ऑफलाइन जाएंगे। अब क्योंकि हमारा पूरा मार्केटिंग का पैसा सेव हो गया था बिकॉज शार्क टैंक एयर होने वाला था, हम एक्चुअली वो प्लांट ले पाए थे ऑफलाइन जाने का राइट आफ्टर शार्क टैंक। तो लिटरली जो हम 2.5 साल बाद करने वाले थे वो हमने 2.5 साल पहले कर लिया। तो आई थिंक आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू this event actually happening in my life. So most of the like founders, they don't take advices from the Shark Tanks. You know, the sharks are basically they ignore it. But you have seriously taken Aman Gupta's advice and you have actually opened an offline school. हमने literally gone wild. Correct. हमने literally every single advice that we, every single criticism also for that matter of fact that we got on Shark Tank, हमने हर एक criticism उठा के हमने हर एक के ऊपर काम किया। Next question is that on that only. Correct. So let's say विनीता ने हमें बोला था कि यार आपका ना थोड़ा सा
करिकुलम थ्योरेटिकल लग रहा है, लोगों को एक्चुअली फील्ड पे जाके सेल्स होगी। तो हमने एक्चुअली वो करवाया स्टूडेंट से, मतलब जब हमने अपना ऑफलाइन प्रोग्राम लॉन्च किया, स्टूडेंट्स आर एक्चुअली गोइंग ऑन द स्ट्रीट्स, दे आर पिचिंग द ब्रांड, दे आर सेलिंग दैट ब्रांड, दे आर गेटिंग रेवेन्यू, वो रेवेन्यू एक्चुअली जनरेट कर रहे हैं फॉर कंपनीज। अमन ने बोला ऑफलाइन कॉलेज शुरू करो, हमने ऑफलाइन कॉलेज शुरू किया। अनुपम ने बोला लेट्स से आप लोग के पास सब्सटैंशियल सेल्स एक्सपीरियंस शायद नहीं है फॉर यू टू बी एबल टू लेट्स से बिल्ड द एंटायर ब्रांड, तो हम और बहुत अच्छे मेंटोर्स लेके आए जिनके पास स्ट्रॉन्ग पेडागोजीज हैं फ्रॉम वेरियस कंपनीज, जोमैटो, एपिगामिया, एडोबी, बेसिकली एनी ब्रांड दैट यू पिक अप, दोज आर द काइंड ऑफ पीपल हु आर लेट्स से कमिंग एंड टीचिंग। उसके बाद फिर कुणाल ने भी बोला था कि आप पैसा रेज मत करो, हमने अभी तक पैसा रेज नहीं किया, हमने प्रॉफिटेबली ही बिजनेस को बेसिकली सेटअप किया। तो एवरी सिंगल एडवाइस दैट वी कुड गेट, हमने हर एक एडवाइस को एज अ क्रिटिसिज्म से ज्यादा एज अ कंस्ट्रक्टिव criticism लिया, उसके ऊपर रील्स बनाई कि let's say this is what let's say we got as an advice, we've taken this, we've inculcated this, and this is basically how we're moving, and genuinely they all helped, मतलब सारी advices actually helped in the business only. So विनीता ने जैसे बोला था कि भाई आप लोगों के पास ना तो सेल्स एक्सपीरियंस है, अनुपम ने बोला था, अनुपम ने बोले थे, एंड विनीता ने बोला था कि आपको सेल्स के लिए वो हायर नहीं करेंगे आपको कोई बच्चे, करेक्ट बिकॉज यू डोंट हैव लाइक एनी बैकग्राउंड सेल्स, कोई आपका एक्सपीरियंस नहीं है। So, अब कैसा लग रहा है when you have like 14.75 LPA of average placement? विनीता मैम को बोला है कि मैम you owe us a placement, अब जाके आप हायर कर सकते हो हाइट से बच्चे। I think like she had a fair point, like all the sharks actually had a fair point only उस point of time पे, तो nothing against, but अब थोड़ा सा प्लेसमेंट एक्चुअली बढ़ गया है, तो 16.5 LPA for the current PGP cohort बढ़ गया, तो वो सीन है। बट आई थिंक उस टाइम पे शायद फीडबैक्स काफी जेन्युइन थे, एंड हमारे लिए भी आई थिंक वो चैलेंजिंग था कि वापस आके वी वांटेड टू इंश्योर कि जो स्टूडेंट्स एक्चुअली प्लेस हुए हैं अब उनको अच्छा फोड़ना चाहिए कंपनी में फॉर अस टू बी एबल टू वैलिडेट द मॉडल। वो एक्चुअली अब होना शुरू हो गया है, तो अब जो कंपनीज ने फोर्स कॉर्ट में हायर किया था, नाउ दे वांट टू हायर अगेन, वो लोग मैनेजर्स बन गए जो स्टूडेंट्स एक्चुअली उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। सो नाउ दोस मैनेजर्स, द स्टूडेंट्स एक्चुअली हु गॉट इन, दे बिकेम मैनेजर्स, दे हेडिंग कैटेगरीज, नाउ दे कमिंग बैक एंड सेइंग यार ओके गिव अस सम स्टूडेंट्स हियर, we want more cream now, and that's exactly what happens in maybe a good B school. अब माइका उठा लो, ISB उठा लो, SPJN उठा लो, IIMS उठा लो, MDI उठा लो, मास्टर्स यूनियन लेट्स से उठा लो, वही होता है कि the students actually go out, they perform really well in the jobs, they become the recruiters, they come back, and that's how the entire pedagogy becomes. अगर मैंने एक्चुअली पूछा था मेरे को कि वो टॉप 20 बी स्कूल में कैसे जाओगे, आई थिंक वो जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, अब बस यही है कि इस जर्नी पे राइड करते हुए चलना है। So I like the best thing कि भाई आपने MBA करा मास्टर्स यूनियन से, करेक्ट, आप MBA स्कूल गए, करेक्ट, आपने वहाँ के रिसोर्सेज यूज करे, आपने वो सारी चीजें करी जो आप MBA में करना चाहते थे, और आपने बोला कि यार MBA मत करो, हाइव में आ जाओ और हाइव ज्वाइन कर लो। करेक्ट, तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। नहीं, आई थिंक यार पॉइंट बहुत सिंपल था, व्हिच इज कि I was very much in support of new age business schools कि new age business schools और खुलने चाहिए, तो I'm still a very huge advocate of Masters Union, Mesa School of Business, Altera Institute of Management, Scalar School of Business, basically the idea or the like whole university or the college, the ecosystem also, like they're all doing really good work, मतलब every single B school is doing so much good work because pedagogy पे काम कर रहे हैं, curriculum पे काम कर रहे हैं, outcome पे काम कर रहे हैं, students के साथ काम कर रहे हैं, तो मेरे को तो actually I'm very happy about the fact कि इंडस्ट्री बहुत ग्रो हो रही है, बिकॉज बहुत एफर्ट लगा है फॉर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि अपने बच्चे को एक कन्वेंशनल बिजनेस स्कूल में डालना जहां पे आउटकम ही नहीं निकलेगा एंड आप 10-15 लाख फीस इन्वेस्ट कर दोगे, उससे बेटर है आप एक न्यू एज बिजनेस स्कूल में डालो। मतलब उसमें वो इंडस्ट्री का पीएमएफ आने में एक्चुअली बहुत एफर्ट लगा है, एंड आई थिंक वी आर ऑल we've all contributed mutually, like every single player in the market has contributed mutually towards this entire target, तो created a whole ecosystem of whole ecosystem, तो एक बंद नहीं होना चाहिए। I think ये तो बढ़ना चाहिए और स्केल होना चाहिए और बिजनेस स्कूल्स आने चाहिए, मेरे को तो लगता है, तो जितने ज्यादा आएंगे उतना बढ़िया है, मतलब उतनी इंटरेस्टिंग होगी। बहुत बड़ी मार्केट यार, लाइक ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ people right now are pursuing either a BA or a BBA or a BCom, absolutely, तीनों से कुछ नौकरी नहीं लगती है, मतलब हार्डली उसमें से 92% बच्चे तो प्लेस भी नहीं होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है, 92% है, 8% बच्चों की जो नौकरी लगती है वो 3-4 लाख रुपए एवरेज पैकेजेस पे जाते हैं। उसमें से लेट्स से अगर आप एक कॉलेज बनाते हो जो एक अंडर ग्रेजुएशन के बाद ही मे बी 7-8 लाख 9-10 लाख रुपए की नौकरी पे लगवा देता है एटलीस्ट, या फिर एटलीस्ट एक जॉब लगवा देता है, एटलीस्ट इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट बनाता है, या फिर ऐसे स्टूडेंट बनाता है जैसे जो स्टार्टअप बना लेते हैं, उससे तो बढ़िया कुछ बात ही नहीं है ना। तो अभी तो 1.5 करोड़ की जनता को आपको टैप करना है, 4-5 बिजनेस स्कूल से क्या होगा, ये तो हजारों बिजनेस स्कूल चाहिए तब जाके वो जनता टैप होगी। अच्छा चलो, अभी ये हमारा पॉडकास्ट कोई बच्चा देख रहा है, इज लाइक हिज अर्ली 20s और करेक्ट, उसने कैट निकाला है, ठीक है, IIM उसके पास आ गया है, AB उसके पास है, अहमदाबाद और बैंगलोर, करेक्ट, और आप आते हो अब बोलते हो कि भाई यहाँ मत जा,
हाइव आजा, नहीं जाओ, हाइव आपके पास जाओ। तो हमारी पोजीशनिंग बहुत सिंपल है यार कि आई थिंक जिसके पास IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, लखनऊ, कलकत्ता, कोझिकोड, इंदौर अभी है, प्लीज गो फॉर दोस बी स्कूल्स। अब बहुत ही ऑनेस्ट चीज है कि ऑब्वियसली दोस बी स्कूल्स विल गिव यू बेटर पेडागोजी। Actually, I'll not say better pedagogy, but I'll say at least those B schools is a more rational bet for you. If we do a comparative analysis, who is relevant to us? Maybe anyone जिसका टॉप 15-20 B schools नहीं हुए हैं currently. Maybe CAT में कितना भी स्कोर हो सकता है, मे बी या तो स्कोर कम हो सकता है, अच्छा हो सकता है, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कितना स्कोर होगा, बट स्मार्ट है एंड थॉट प्रोसेस पावर है, हसलिंग है, काम किया है, लेट्स से थोड़ा बहुत इंटर्नशिप्स की है या फिर थोड़ी बहुत जॉब की है, बट जेन्युइनली एक हसलिंग नेचर है एंड एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, स्टार्टअप्स के अंदर जाना है, वहां पे जाके प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, करियर या तो स्टार्ट कर रहे हैं या फिर लेट्स से 2-3 साल 4 साल हो गए हैं, 7-8 लाख 9 लाख रुपए कमा रहे हैं, अब एलिवेट करना है करियर को, हाई स्कूल आ जाओ, तब हाई स्कूल आ जाओ। लेट्स अगर आपके पास इफ लेट्स से यू आर दिस वन करंट काइंड ऑफ पर्सोना कि आपको कैट में बार बार 99 परसेंटाइल वाली रेस पे नहीं जाना है, टॉप 15-20 स्कूल्स कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, देन आई थिंक वी बिकम वेरी रिलेवेंट। बट अगर आपके पास एक IIM अहमदाबाद शॉर्टलिस्ट है, IIM बैंगलोर शॉर्टलिस्ट है, प्लीज गो फॉर इट। मतलब वो तो हम एडमिशन कॉल में बोल देते हैं, लेट्स से इफ समवन कम्स इन एंड सेज कि हमारे पास XLRI शॉर्टलिस्ट है, IIM अहमदाबाद शॉर्टलिस्ट है, वी से कि यार यू प्लीज ऑप्ट फॉर दैट कॉलेज, बिकॉज आप अगर उसको छोड़ के भी यहाँ पे आ गए तो आप उसको रैशनलाइज करते रह जाओगे डिसीजन को, you won't be able to do anything, you not be able to do anything about it। तो उस एक्सपीरियंस को स्पॉइल करने से बेटर आप प्लीज वहां पे जाओ। वी हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंस जैसे दैट वी ट्राई टू केटर ऑन एंड वी आर ओनली ट्राइंग टू फोकस ऑन दैट काइंड ऑफ ऑडियंस। सो यार अभी जैसे बी स्कूल्स अब धीरे धीरे इंडिया में भी इवॉल्व हो रहे हैं एंड दे आर एक्चुअली परफॉर्मिंग रियली वेल एंड अभी जो वहाँ की प्लेसमेंट रेट्स है और हमारे जो प्लेसमेंट, फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट मास्टर्स इंजीनियरिंग, अब ये लोग बोलते हैं कि इनकी जो प्लेसमेंट रेट है दैट इज लाइक अप टू 1.2 CR, ऐसा इनका जा रहा है, पैकेजेस अच्छे जा रहे हैं। करेक्ट। एंड वी कंपेयर इट विद IIMs, तो IIMs जाता है उनका भी अच्छा प्लेसमेंट रेट होता है, बट ये लोग अभी अभी आए हैं। करेक्ट। मतलब इफ यू इमेजिन लाइक ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, हाउ कम दे आर एबल टू मैच दिस काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द प्लेसमेंट रिपोर्ट्स, और जो रैशनली बहुत इंप्रूव हो रही है करेक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो पैकेज जैसे अभी आपने बताया कि पहले मैंने जो आपको बताया 14.75, आपने बोला नहीं भाई बढ़ गया, अब 16 पॉइंट समथिंग हो गया कुछ। सो हाउ दीज बी स्कूल्स आर ग्रोइंग ऑन अ वेरी एंड एज, और उनको एक पावर मेरे ख्याल से ये मिल रही है कि जो हमने लर्न ऑफ द वे ऑफ एजुकेशन हमने वो चेंज करा है, ट्रांसफॉर्म करा है कि भाई आप ना किताबी कीड़ा मत बनो, थियोरेटिकल ज्ञान मत लो, बुक्स वाली बुकिश नॉलेज एक्चुअल में काम नहीं करती है। आप कोई भी MNC में जाके काम करोगे, कुछ भी आप कहीं पे भी जा रहे हो, तो वहां पे आपको लर्न बिजनेस बाय डूइंग बिजनेस वाला थॉट प्रोसेस आपको काम करना पड़ेगा। मार्केट में अगर आप सेल्स में हो तो भाई आपको सेल्स सीखनी पड़ेगी, जाके प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, तभी आपको मार्केटिंग नहीं आती तो मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तभी आपको वो चीज आ पाएगी। तो क्या ये एक आपका ड्राइविंग फैक्टर है आपके बी स्कूल्स का, ताकि ये चीज और स्केल हो रही है, और वही चीज MNCs भी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं कि भाई इनमें और इन स्टूडेंट्स में ये फर्क है कि ये एक्चुअल में ग्राउंड लेवल से नॉलेज लेके आ रहे हैं, सो दे नो अबाउट द फैक्ट कि इसको कैसे स्केल करना है या इसको कैसे बेचना है, या मार्केट में ऑफलाइन में क्या गेम है और ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या गेम है। तो दिस इज द थिंग। और आर देयर एनी मोर ड्राइविंग फैक्टर्स टू बूस्ट द placement reports of these kind of B schools? So I think पहले क्या हुआ था ना, पहले स्टार्टअप्स ने इसको रिकॉग्नाइज किया इस मॉडल को, which is कि स्टार्टअप्स को फर्क नहीं पड़ता कि आप IIM से ले रहे हो या फिर आप हाइट से ले रहे हो या फिर आप मास्टर स्टूडेंट से हायर कर रहे हो, they just want good talent who can actually come in and who can start performing from day one। मतलब उनको they are operating on pace, क्योंकि उनको तेज ऑपरेट करना है स्टार्टअप्स को। तो स्टार्टिंग में स्टार्टअप्स ने हायर करना शुरू किया ये न्यू एज बिजनेस स्कूल से, फिर जब स्टूडेंट्स ने एक्चुअली जाके परफॉर्म अच्छा करना शुरू किया स्टार्टअप्स के अंदर, तब वो एक PMF आया फ्रॉम अ रिक्रूटर स्टैंड पॉइंट। उसके बाद फिर कुछ MNCs ने एंगेज करना शुरू किया। तो अभी ऐसा नहीं है कि MNCs एट स्केल सारी की सारी एक्चुअली हायर करती हैं इन न्यू एज बिजनेस स्कूल से, बट डेफिनेटली MNCs हैव आल्सो नाउ स्टार्टेड एंटरिंग इनटू दिस स्पेस ऑफ हायरिंग फ्रॉम दीज न्यू एज बी स्कूल्स, बिकॉज वो स्टार्टअप्स को इनिशियली समझ में आया कि यार हमें इंडस्ट्री टैलेंट चाहिए, हमें मतलब ऐसा बच्चा चाहिए जो फर्स्ट डे से आके काम करना शुरू करे, बस प्लग एंड प्ले हो, हमें ट्रेन नहीं करना उसको फालतू चीजों पे, क्योंकि वहां पर टाइम ही नहीं है एक्चुअली। तो वो स्टार्टअप्स में बच्चों ने जाके प्रूव करना शुरू किया, बिकॉज द पेडागोजी वाज क्रिएटेड एट सच, व्हिच इज कि जो पढ़ाया जा रहा है बिजनेस स्कूल के अंदर, न्यू एज बिजनेस स्कूल के अंदर, वो वही पढ़ाया जा रहा है जो एक्चुअली वो फर्स्ट डे से अप्लाई कर सकते हैं, जो प्लग एंड प्ले कर सकते हैं बेसिकली फर्स्ट डे से। तो वो स्टार्टअप्स में पहले हुआ, वहां से एक प्रोडक्ट मार्केट फिट आया, उधर से फिर MNCs ने अडॉप्ट करना स्टार्ट किया है,
अभी लेट्स से शायद 3 या 4% MNCs ने अडॉप्ट किया होगा, बट द इंटेंट इज की मे बी एट स्केल 70-80% MNCs हमारे से हायर करें, न्यू एज बिजनेस स्कूल से हायर करें. दैट्स व्हेन मे बी वी विल बिकम अ लॉट मोर रेलिवेंट. बट आई एम प्रीटी श्योर कि अगले 5-6 साल के अंदर ये पैटर्न फॉर श्योर हो जाएगा, दैट 60-70% MNCs वुड बी हायरिंग फ्रॉम दीज न्यू एज बी स्कूल्स फॉर श्योर. Absolutely. So, अभी हाइव का क्या कंडीशन है? Like, are you guys willing to raise funds? अभी Shark Tank सीजन 5 पे हमने देखने को मिलेगा हाइव, या फिर अभी आप प्लान कर रहे हो कि नहीं, अभी रुकते हैं, अभी और पैसा बनाते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे क्या सीन है? फंड रेज तो I don't think is on the plan right now. Because I think fundraise doesn't define the success of any business. At least our business for that matter of fact. हमारे लिए success metric है कि स्टूडेंट्स कितने अच्छे आउटकम्स पे जा रहे हैं, एंड वो आउटकम्स हम कंसिस्टेंटली दे पा रहे हैं फिर नहीं दे पा रहे हैं. वी आर प्रॉफिटेबल राइट नाउ, वी आर कंफर्टेबल राइट नाउ, वी आर ग्रोइंग वेल ऑल्सो, वी आर हैविंग a ball of a time on our campus. We enjoy our time with the students. The students have a ball of a time with us. हमें बहुत मजे आ रहे हैं. हमारा जो let's say college है वो बनाने में, we are building with a lot of heart and soul. तो अभी हमें कोई distraction नहीं चाहिए. We just want to focus on what we are right now. So at least मतलब I would not want to raise money into this business. बाकी I don't know exactly the circumstances is, but अभी के लिए तो I think we are very comfortable and I think we'll be able to survive in this game and we'll be able to grow to a much bigger brand without raising any money. तो इस business में I don't want to raise money. तो यार मैं तो ना इस चीज से बहुत रेजोनेट करता हूँ कि rather than giving this decision making power to investors, because जब आप पैसा रेस करते हो, आपने अच्छे पैसे रेस कर लिए, फॉर एग्जांपल आप शार्क टैंक पे गए थे, तब आपने 65 लाख पे 5% पे वैल्यूएशन करा था, जो कि 12 करोड़ था, राइट? सो ऐसे और भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एक्चुअली में ना सक्सेस मैट्रिक्स को ना अलग तरीके से लेते हैं. वो सोचते हैं कि अगर आप सीरीज ए सीरीज बी में फंड रेस कर रहे हो तो आपके पास अच्छा पैसा आ जाएगा और आपको अच्छी फंडिंग मिल जाएगी. बट एक्चुअली में लोगों को ये नहीं पता है कि जब वो पैसे रेस कर रहे हैं, फंड्स रेस कर रहे हैं, उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द डिसीजन पावर जो आपके हाथ में है, जो आपका होम ग्रोन प्रोडक्ट है, वो डिसीजन मेकिंग पावर्स आप इन्वेस्टर्स को दे रहे हो. आपको कुछ भी कर रहे हो, आपको उसका हिसाब किताब देना है. आप फ्लाइट्स पे जा रहे हो, आपको फ्लाइट्स का देना पड़ेगा. आप बाहर घूम रहे हो, आपको ये पता है कि ये एक्सपेंसेस आपने कहाँ से निकाले. तो यू आर अकाउंटेबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग, फॉर ईच एंड एक्सपेंसेस यू आर डूइंग. और उसमें इससे ज्यादा बेटर ये होगा कि अगर आप कोई स्टार्टअप बिल्ड करो, यार बूटस्ट्रैप करके करो, तो उससे बेस्ट तो कोई चीज ही नहीं है. पावर तुम्हारे पास, पैसा तुम्हारा, रेवेन्यू तुम्हारा, नो इक्विटी शेयरिंग, व्हाट इज द बेस्ट थिंग? आई थिंक नेचर ऑफ बिजनेस है. फॉर एग्जांपल अगर यही मैं एक कंज्यूमर टेक प्लेटफॉर्म बना रहा होता जहाँ पे मेरा एवरेज ऑर्डर वैल्यू बहुत छोटा होता, 400-500 रुपए होता, वहाँ पे मेरे को वॉल्यूम ऑफ कंज्यूमर्स एक्वायर करने होते. मतलब आई वुड हैव वांटेड lakhs ऑफ कस्टमर्स ऑन माय प्लेटफॉर्म टू यूज माय सर्विस एंड दैट टू ऑन अ रिटेंशन बेसिस फॉर मी टू बी एबल टू सर्वाइव आल्सो इन दिस बिजनेस. हम कुछ मतलब वो एक अगर कंज्यूमर टेक प्लेटफॉर्म लेट्स से अगर बना रहा होता तो शायद तब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रेज मनी. बट हमारे केस सिनेरियो में every single student is let's say paying almost 8.5 lakh in terms of their total fees. तो अगर हम 100 students भी let's say लेके आते, that's almost 8.5 crore in terms of top line, which is good revenue let's say for an education business. You can be profitable in that business. You can easily operate in that business. The costs can be managed. The operational expenses can be managed. And उस केस में let's say एक education business मेरे को नहीं लगता कि the intent should be to scale. The intent should be to create a very good brand equity. For example, I'm not sure if I'm saying this. Let's say अगर आपके पास एक Amity है, and अगर आपके पास एक ISB है, और अगर आपके पास एक Mica है, तो obviously ISB and Mica holds a lot greater brand equity as compared to maybe an Amity. Amity, correct. The revenue of Amity may be a lot more higher, but the kind of outcomes, the kind of pedagogy, or let's say the kind of the final product, let's say that's coming out of Mica and ISB is much greater, let's say, as compared to an Amity. So मेरे को लगता है एजुकेशन उस इंटेंट से शुरू होना चाहिए. मतलब there's a reason for why education was always meant to be a not for profit industry, purely because it's supposed to create good talent. तो rather than thinking of scale, like you should be thinking, अगर आप education business let's say at least शुरू कर रहे हो, so you should be comfortable with the fact कि धीरे पैसा बनेगा, आराम से पैसा बनेगा, but the outcome has to be achieved. कि आप काम कर रहे हो consumers के लिए, आप consumers और अपने users को सर्व कर रहे हो, वो users आपके लिए students हैं. तो इस nature of business में बिना पैसा रेस के आप ऑपरेट कर सकते हो. अगर ये लेट्स से मैं D2C ब्रांड बना रहा होता तो मेरे को फॉर श्योर पैसा रेस करना पड़ता, क्योंकि एवरेज ऑर्डर वैल्यू बहुत छोटी है, हाई वॉल्यूम्स को बेचना
बेचना है, उस वॉल्यूम को जल्दी एक्वायर करने के लिए मेरे को पैसा चाहिए। ये सेम यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पे मैं 100 बच्चों पे भी सेम ब्रांड इक्विटी बना सकता हूँ। आई कैन मे बी क्रिएट अ बेटर ब्रांड इक्विटी इवन एट 100 स्टूडेंट्स और मे बी एट 1/10 of Amity's revenue, which let's say we've already created. So the dynamics of the business is very different, let's say here, as compared to some other business. And hence, this one, maybe startup, we're not raising money, but we might have to raise somewhere else. So, ये होना चाहिए, I think. Absolutely. So, looking at your own experience in education sector, so आपने काम भी मेरे ख्याल से इन्हीं इंडस्ट्री में हाँ, I've करा only है. worked in education. So, what did your like think कि आपने सोचा कि यार एजुकेशन में ही कुछ बनाना है और Correct. इसी में ही कुछ हमें डिस्टर्ब करना है? Correct. So I think start हुआ था when I was 19. तो college के second year में, so I actually come from so I've done my BBA from a college जहाँ पे placements नहीं होती थी, ठीक है। BBA में जनरली प्लेसमेंट्स नहीं होती हैं क्रॉस इंडस्ट्री, तो वो प्रॉब्लम है। तो कौन सा कॉलेज था अपना? आई वाज अ प्रोडक्ट ऑफ आईपी यूनिवर्सिटी। आईपी यूनिवर्सिटी, तो उधर से मैंने अपनी बीबीए करी है। मैं देख रहा था कि यार मेरे आसपास में बच्चों की प्लेसमेंट्स ही नहीं हो रही हैं, तो मेरे को था चलो इनको प्लेसमेंट्स कराते हैं, इनको प्लेसमेंट रेडी कराते हैं। मेरी उस टाइम पे इंटर्नशिप लग गई थी, तो मेरे को था जैसे मेरी इंटर्नशिप लगी है सेम मैं एक प्ले बुक बनाता हूँ और वो कॉलेजेस में देना शुरू करता हूँ। तो मैंने 19 साल में कॉलेज वर्कशॉप देनी शुरू करी। क्रेजी। एंड उधर से लेट्स से मैंने फिर 500 रुपए में बच्चों को लेना शुरू किया 500 रुपए दो। एंड मेरे कॉलेज, जो मेरा कॉलेज था लेट्स से, वहाँ पे मैं एक वर्कशॉप करूंगा, आप वहाँ पे आना, मैं आपको सिखाऊंगा कि इंटर्नशिप कैसे लगती है। तो वो हमने अराउंड 50-60 बच्चों के लिए किया। उधर से फिर थोड़ा बहुत रेवेन्यू आया, बट वो ऑब्वियसली एक बिजनेस मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल नहीं था। फिर हमने शट किया उसको। उसके बाद फिर मैंने एजुकेशन के अंदर काम किया 2.5-3 साल। बट वहां से मेरे को समझ में आ गया था कि लेट्स से अगर इसके बाद अब मेरे को कुछ बनाना है तो मेरे को एजुकेशन में कुछ बनाना है, और अगर एक कॉलेज ही बना दूं तो उससे तो बढ़िया कुछ चीज हो ही नहीं सकती। तो एक्चुअली दिस वाज manifested back in 2019. Let's say that if in case next I will build something, I will only build a college. तो आइडिया तो बहुत पहले आ गया था। जो मैनिफेस्टेड कि हाँ एक कॉलेज ही बनाना है, प्रॉपर कॉलेज। 2019 में ही was my phone's wallpaper that I will build a college if I build next. So that was in 2019. उसके बाद फिर 2024 में let's say I got the chance again, which was after 5 years की now maybe we can start something. तो I think touch wood and God's grace, life has come a decently long way, but a lot more to come next. So yeah. तो यार ये चीज तो है कि मतलब हम जब गैप्स फाइंड आउट कर लेते ना, फॉर एग्जांपल अगर जब आपने वो देखा हुआ कि when you were selling ticket size of like 500, right? हाँ, 500 रुपए। 500 रुपए में आप जब वो बेच रहे थे और 40 बच्चे आ गए कि भाई देख के कि भाई जॉब सबको चाहिए, क्योंकि भाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया का तो बहुत ज्यादा है। करेक्ट। अराउंड अगर मैं स्टैट्स बताऊं तो 70% मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बीबीए ग्रेजुएट्स को जॉब्स ही नहीं मिलती। एमबीए में भी 75% 75% इज द बेसिक एवरेज सर्फेस एरिया ऐसा है जिन पे नहीं मिल पा रही है। करेक्ट। तो अगर आप ये गिमिक दे रहे हो ना, ये वही वाला एग्जांपल होगा कि आप पंजाबीज को एक कॉम्पनी का लिख लो कि भाई कनाडा जा रहा है तो आ जाओ, किडनैप कर लो, चलो। करेक्ट। तो ये वो वाली चीज है कि भाई एक्चुअल में अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए तो आ जाओ, 500 रुपीज आपको देने हैं। That was back in 19. हाँ, correct. So when I was 19. तो तब आपके आइडिया है कि हमें एक प्रॉपर बनाना है। Correct. MBA जब आप मास्टर्स में है, क्या एक्सपीरियंस था, क्या लर्निंग्स थी, हाउ डिड यू एबल टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ दैट थिंग? Correct. कि आप एक्चुअली में फिर एक बिजनेस स्कूल आपने बना भी दिया। Correct. So I'll tell you. So I came into Masters Union because I wanted to understand कि एक न्यू एज बिजनेस स्कूल बन कैसे रहा है। So मेरे को MBA का कोई प्लान ही नहीं था, मतलब मेरे को MBA करनी नहीं थी इन जनरल। मेरे को था कि मैं स्टार्ट ही कर लेता हूँ डायरेक्टली। So I put down my papers and I was like, okay, I was working on the thesis of building something in education. Then I was like, okay, let me, because Masters was doing actually very good work back then. So I was like, okay, let me try to join and let me see exactly how I can learn from the entire concept. तो फिर अंदर आया, फिर यहाँ पे तो मतलब I met very good people, very good community, very good mentors. And then I just started building कि हर रोज मैं सुबह I guess 12 बजे कैंपस आता था दोपहर में, and I used to leave at around 5 AM in the morning. That used to be my standard routine. तो हमारे तो रात को literally 10 बजे के बाद 3-4 स्टूडेंट्स होते थे हम जो बस बैठे होते थे। हम तीनों चारों रात को बिल्ड कर रहे होते थे स्टार्टअप। तो मेरा तो फैमिली सी बन गई थी बेसिकली रात को। This used to be my second home only. So that was the thing. So that's how MU typically happened, and that's exactly how Hive School shaped out of Masters Union. So yeah, that was it. Crazy, because मेरे ख्याल से ना जो I totally believe in this thing कि जो हमारा सराउंडिंग होता है वो ना हमारे आने वाले 5 years बता देता है। करेक्ट। कि भाई आपकी जैसी संगत है वैसे आप आने वाले टाइम में बन जाओगे। करेक्ट। तो
आप जब MBA अभी आपके जो folks थे वो कहाँ प्लेस्ड है? So first quad, I'll tell you. First quad में the company that I've hired is Pioneer, once again $1 billion valuation company, Adobe, MNC. उसके बाद Culture Circle, Shark Tank brand, Doful, acquired by Chayos, doing very good, raised a lot of money. उसके बाद फिर क्या नाम है और कौन सी कंपनीज हैं? Yatra.com. So multiple companies. सारे multiple big brands These are a few अभी examples. बात होती है, मिलते हो? हाँ मिलते हैं लाइक द स्टूडेंट्स आर ऑलवेज वेलकम ऑन द कैंपस, तो सबका केक कटता है, उसके बाद जाते हैं एंड उसके बाद फिर जब भी आते हैं सो दे कीप मीटिंग अस ऑन द कैंपस. इट्स वेरी फन वाइब, मतलब इट्स लाइक अ फैमिली ऑन कैंपस. स्टूडेंट्स हैव अ लॉट ऑफ फन देयर एंड सो डू वी. मतलब हम पूरे दिन कैंपस पे पड़े रहते हैं बच्चों के साथ, चिल करते हैं, पार्टीज करते हैं, चैलेंजेस करते हैं. हर वीकेंड चैलेंज होता है, हर सैटरडे को चैलेंज होता है, हर वेडनेसडे एक वन डे चैलेंज होता है. तो हर सैटरडे कोई ना कोई आ रहा है, हर दिन लेट्स से हर हफ्ते कोई ना कोई आ रहा है इंडस्ट्री से. तो इट्स वेरी फन. इट्स अ वेरी चैलेंजेस किस टाइप के होते हैं? मैंने ना अभी वो देखा था आपका, एक ऐड आया था उसमें, डोंट से ब्ला ब्ला ब्ला, से ब्ला ब्लू. तो चैलेंज का सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि हम एक्चुअली इंडस्ट्री में से जो लोग हायर कर रहे हैं हम उनको कैंपस पे लेके आते हैं. हम उनको बोलते हैं अपनी कंपनीज के लिए एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दो, ठीक है, एंड हमारे स्टूडेंट्स को उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर काम करने दो. आपके लिए कुछ ट्रैक्शन लेके आने दो, आपके लिए कुछ बिल्ड करने दो, and let them pitch in front of you. Okay, so that is typically, let's say, what we call as a industry hiring challenge. Correct. अब जो भी ये leaders आते हैं, let's say हर Saturday basically challenge होता है, तो हर Saturday 3 से 4 panel leaders या फिर कोई founder या फिर कोई CXOs, that's it, जो people that are actually hiring for their brands, they come in, these students build on the problem statement for their companies and they pitch it live in front of those leaders now. उनके पास 3 option होते हैं, either they can choose to hire, they can choose to pass, they can choose to interview. Okay. Depending upon that becomes our entire hiring funnel. I'm telling you कि जो students actually place हुए हैं cohort 1 offline PGP के अंदर भी, all of these brands actually came on the campus. All of these brands were either a part of the challenges or a part of an ODC or a part of the guest sessions. So that's typically how you crack placements also. मतलब that's, if let's say you ask me कि वो पैकेजेस कैसे क्रैक हो पा रहे हैं, वो पैकेजेस इसलिए क्रैक हो पा रहे हैं बिकॉज पेडागोजी ही पूरी फ्लिप कर दी है. मतलब लिटरली स्टूडेंट्स को चांस मिल रहा है हर सैटरडे उनके सामने पिच करने का जो उनके फ्यूचर रिक्रूटर्स एक्चुअली होने वाले हैं. सो दैट्स द एंटायर थिंग हाउ इट ऑपरेट्स. वो मेन चीज भी है ना कि जब आपके पास वो लेवल के लोग आ रहे हैं जो एक्चुअल में उनको हायर करना है, करेक्ट, और आप अगर रियल बेस सिनेरियोज पे काम करो जो एक्चुअल प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है, लाइव प्रोजेक्ट्स ही वही हैं. करेक्ट कि भाई यस मैडम है और उनका कोई भी प्रोजेक्ट आया कि भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है टायर 2 या टायर 3 सिटीज में, हम कैसे एक्सपैंड करें बताओ. और बच्चे जाके उनको ही पिच करें कि आप ये स्ट्रैटेजी लेके जाओ, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, तो पीपल विल स्टार्ट नोटिसिंग नॉट द स्ट्रैटेजी, दे एक्चुअली टॉक टू द यूजर्स आल्सो. ओके, फॉर एग्जांपल जैसे इंटरव्यू लाइक फुल ग्राउंड लेवल कॉल करते हैं, जाके देखते हैं प्रोस्पेक्ट्स को कोल्ड कॉल, मतलब कि अच्छा दिस इज व्हाट वी आर सेलिंग, वुड यू वांट टू कम फॉर अ मीटिंग. मीटिंग्स बुक कर देते हैं कभी कभी किसी ब्रांड के लिए, फिर वो अपनी कोल्ड कॉल रिकॉर्डिंग दिखा देते हैं एक्चुअली, या फिर अगर जाके बेचते हैं. फॉर एग्जांपल ब्लाबली ब्लू वाला चैलेंज, एक्चुअली स्टूडेंट्स वर गोइंग ऑन द स्ट्रीट्स एंड दे वर सेलिंग. सो लॉट ऑफ फन स्टफ कीप्स हैपनिंग. मतलब एक्चुअली हाउ कैन यू जनरेट रेवेन्यू फॉर दोस ब्रांड्स is what they try to do when they do these challenges, and then they pitch whatever they've done live in front of them. So founder के लिए या फिर किसी भी hiring leader के लिए no better validation than this. Like वो exactly काम देख रहे हैं कैसा काम करेगा. So yeah. अभी एज अ फाउंडर अभी क्या गोल्स हैं लाइफ में, अब और क्या करना है? यार आई थिंक 2-3 है, which is कि I've gotten into fitness lately. अच्छा. So I think I'm you're pretty fit यार वैसे तो. हाँ अभी lately मतलब which is कि 1.5 साल हो गया. तो पहले I was I had gained a lot of weight. उधर से then I lost good amount of kgs. I almost 10 kgs. So got fit. So the intent is to get more fit. मैंने रील भी डाली थी कभी इंस्टाग्राम पे कि मे बी कैन आई बी अ फाउंडर हु कैन आल्सो हैव अ सिक्स पैक एब्स. सो समथिंग ऑन दोस लाइंस. सो एक तो वो गोल है. सेकंड गोल इज कि हाइव स्कूल को ही भाई 2030 तक कैन वी गेट इट टू टॉप 20 बी स्कूल्स ऑफ इंडिया. तो बस ये 2 गोल्स हैं अभी के लिए तो, एंड जस्ट वर्किंग टुवर्ड्स बोथ ऑफ देम. नथिंग नो थर्ड गोल. अभी जब आप अपने आप को देखते हो, सुबह उठते हो एंड यू फील लाइक यू आर द फाउंडर, फैमिली का क्या रिएक्शन रहता है एंड हाउ डू योर लाइक फैमिली परसीव यू कि यार हमारा ये बच्चा था, उसको हमने एक ट्रेन करा, एक अच्छे कॉलेज में दिया, एक जितनी एजुकेशन उसको प्रोवाइड कर सकते थे हमने कराई, अब उसकी लाइफ है ये, उसको कैसे करना है, और अब वो आपको कैसे देखता है? क्या आपके जो पेरेंट्स हैं उनका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है अभी बीइंग अ फाउंडर, और जब फाउंडर नहीं थे व्हेन यू वर इन द ग्राइंडिंग फेज?
जब एमयू में 5 बजे तक रुकते थे, बोलते थे कि भाई कहाँ है, घर आ जा। नहीं, वो तो आई थिंक स्टैंडर्ड था, मतलब वो तो मम्मी की चप्पल तो हमेशा स्टैंडर्ड रहेगी फॉर श्योर। तो आई थिंक बट या दे प्राउड, दे वेरी प्राउड फॉर श्योर, एंड आई एम लकी टू हैव, आई थिंक I'm lucky to have parents like them, which is I'm very proud of my parents also, because जब मैं build भी कर रहा था तो तब भी उन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने कहा कि तेरे को जो करना है तू कर, बस अपने पैसे अपने हिसाब से खर्च करियो, हमारे पास मत रहियो, तेरे खर्चे अपने हिसाब से कुछ चलाने हैं, you should be accounting yourself, like you should be accountable to yourself, not even to us. तो I think I'm very lucky that way. दूसरा आई थिंक यार, अभी ना मेरे पेरेंट्स ऑफिस में कैंपस विजिट किया था, तो मेरे पेरेंट्स आते रहते हैं कैंपस, जब भी कोई नया बैच हमारा आता है तब वो कैंपस आते हैं, कोई नया बैच अगर बैच कॉन्वोकेट होता है, ग्रेजुएशन होती है, तब वो कैंपस आते हैं, वो हर बार हर बैच के हर स्टूडेंट से मिलते हैं, वो हर 3 महीने में लेट्स से कैंपस देख के जाते हैं। तो आई थिंक देर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ हाई स्कूल, मतलब वो एक स्टार्टअप का पार्ट बन गया ऑलरेडी, एंड दैट्स टिपिकली लेट्स से व्हाट वी हैव डन। सो आई थिंक माय स्टार्टअप हैज एक्चुअली बीन एबल टू गेट मी अ लॉट मोर क्लोजर टू माय पेरेंट्स। इतनी शायद बात में उनसे पहले नहीं करता था जितनी मैं अब हाई स्कूल के थ्रू कर लेता हूँ, क्योंकि कि जब बिजनेस कैसा चल रहा है, बच्चे आ गए या फिर नहीं आ गए, स्टूडेंट्स घर आते रहते हैं डिनर के लिए, मॉम डैड से मिलते हैं, मॉम डैड कैंपस आते रहते हैं, सारे स्टूडेंट से मिलते हैं, मॉम डैड कैंपस आते हैं, देखते हैं कि अच्छा कैंपस में और क्या नया चल रहा है, चैलेंजेस में कभी आ जाते हैं, जब बच्चे ग्रेजुएट हो रहे होते तब आ जाते हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी फन वाइब, एंड आई थिंक वेरी ग्रेटफुल टू बी एबल टू एक्सपीरियंस दिस लाइफ वंस अगेन, टच वुड, कि आपके पेरेंट्स आपका स्टार्टअप बिट बाय बिट एक्चुअली ग्रो होते देख रहे हैं, आपके पेरेंट्स आके आपका ऑफिस देख पा रहे हैं, Wonderful. आपके पेरेंट्स आके आपके स्टूडेंट्स जो लेट्स से जिन्होंने आपके कॉलेज में एनरोल किया है वो देख पा रहे हैं, एंड दे आर ट्रीटिंग ऑल दो स्टूडेंट्स लाइक किड्स, देयर ओन किड्स। तो मम्मी तो बोलती रहती है बच्चों को आगे कि घर पे आओ तुम्हें चाय पिलाऊंगी, घर पे आओ तुम्हें शाही पनीर बना के खिलाऊंगी। सबकी मम्मी में सेम है, सब मम्मी बिहेवियर, टिपिकल मम्मी बिहेवियर, इवन टू द स्टूडेंट्स, लाइक कि आप घर पे आओ आपको चाय पिलाती हूँ, क्या नाम है, शाही पनीर खिलाती हूँ, राजमा चावल खिलाती हूँ। सो आई थिंक बहुत फन है, बहुत फैमिली वाइब है, बहुत ज्यादा फैमिली वाइब है। एक ना वो हमने देखा था रील में, व्हेन every member of your team was showing the outfit. It's like कि whole culture is like coming, पूरा team से दिखा रहा है कि we are the like you know part of Hive, and सब अपना वो दिखाएंगे outfit of the day। हमारी ना बहुत जल्दी टीम है, तो मैं सबसे ओल्ड हूँ मेरी टीम में। अच्छा, तो मतलब I am 26 and I am the oldest let's say in my team. Actually just Simran like who's slightly more elder than me, but like आप सोच रहे हो कि 26 साल is the second eldest in the entire team, तो बहुत जल्दी टीम है हमारी, तो वो कुछ भी रील्स बनाते रहते हैं। So it was basically one of our team members' wedding, and the entire team was there, and so one of our then interns asked us, she pitched किया निखिल एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम OOTD करेंगे, तो मैंने कर लेते हैं OOTD। तो उसमें सारे मेरे co-founders जो भी लेट्स से टीम मेंबर्स आए हुए थे, हम सबने OOTD किया, वो रील बाय द वे 1 मिलियन चली गई। हाँ वो देखा था। तो वो काफी फन था, तो काफी जेनजी टीम है। सो कल्चर भी वही है कि आप आओ, आप फन करो, आप स्लॉग करो, द वर्क नीड्स टू बी डन, लाइक द जस्ट नीड टू गेट योर शिट डन, यू जस्ट नीड टू गेट योर वर्क डन, एंड यू हैव अ बॉल ऑफ अ टाइम व्हाइल वर्किंग आल्सो। अपनी पर्सनल लाइफ भी एंजॉय करो, आपको आउट ऑफ ऑफिस लेना, आप लेट्स से आउट ऑफ ऑफिस भी लीजिए, आपको क्लबिंग करनी है आप क्लबिंग कीजिए, आपको पार्टी करनी है आप पार्टी कीजिए, कभी कभी हमें करा दीजिए। तो वो सीन है। हाँ, तो जैसे आपको करना आप वैसे करिए, बट आप बस काम करके रखिए, विच इज की इफ लेट्स से थिंग्स ब्रेक इन द बिजनेस तो 12 बजे भी काम करेंगे, तो 2 बजे भी काम करेंगे, इफ थिंग्स आर गुड इन द बिजनेस तो साथ में पार्टी भी करेंगे। तो वो कल्चर है, मतलब कि साथ में ग्रो करो और मजे करते हुए ग्रो करो। मतलब स्टार्टअप शुड नॉट फील लाइक अ प्रेशर, इट शुड फील लाइक अ स्पेस जहाँ पे जाके आप लुक फॉरवर्ड करते हो कि यार आज तो टीम के साथ मजे करेंगे और काम करते हुए मजे करेंगे। सो नथिंग बेटर देन दैट। सो आई टोटली रेजोनेट विद दिस थिंग कि अगर यार आप कुछ भी काम कर रहे हो उसमें आपका मन नहीं लग रहा, करेक्ट, तो आपकी प्रोडक्टिविटी ना यू विल गो बैक टू जीरो। करेक्ट, आई एग्री। आप वो जिस लेवल का आपका काम है और जो आपकी स्किल सेट है ना, वो यूज ही नहीं कर पाओगे। आई एग्री। और अगर जहाँ पे आपका एक पैशन है, करेक्ट, आपको वो काम करने में मजा आता है, यू टोटली एंजॉय दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ। करेक्ट, कि भाई मैं उठूंगा, कल जाऊंगा, वो काम करूंगा दोबारा, और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आई एग्री। 365 days आई एम डूइंग द सेम टास्क, बट आई एम हैप्पी, करेक्ट, एंड आई हैप्पी टू डू इट अगेन। करेक्ट, करेक्ट। तो ये जो चीज है स्टार्टअप्स में मोस्टली जो कल्चर है, जो स्टार्टअप कल्चर होता है, जो ग्राइंड है, जो हसल है और जो मजे हैं, अगर वही चीज है, अगर हम कंपेयर करें बाकी एमएनसीज में जहाँ पे प्रॉपर एक सूट वूट 9 to 5 वाला जॉब है और प्रॉपर वो चीजें हैं जहाँ पे आपको स्ट्रिक्टनेस रहनी है, भाई यू हैव टू मेंटेन द डेकोरम, यू हैव टू मेंटेन यू नो द थिंग्स, बेसिकली आपको अच्छे से रहना है, सबसे बात करनी है ढंग से, सब चीजें रखनी है। और जहाँ पे आता है स्टार्टअप कल्चर, जहाँ पे पूरा ही अपोजिट है, कोई चीज सेम है ही नहीं, सिमिलैरिटी जीरो। तो आपको क्या लगता है कि इस वाले फेज में जो एमएनसीज है वो ज्यादा बेटरली
परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनका जो ओवरऑल इंफ्रा है, हाँ. जो उनकी हायरार्की है, हाँ. वो एक सिस्टम की वजह से बनाई है, एक Correct. स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है. Correct. और ये वाली जो चीज है वो ग्राइंड वाली है. Correct. यार आई थिंक मे बी फॉर एन एमएनसी इट माइट बी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्केल इतना बड़ा हो चुका है. Yeah. तो फाउंडर्स शायद खुद भी इन्वॉल्व नहीं है. लाइक यू वुड हार्डली बी नोइंग मे बी द फाउंडर ऑफ एनी ऑफ द एमएनसीज because there are so many category heads, there are so many vertical heads that are managing the process. जब इतना स्केल हो जाता है ना बिजनेस, तो उस टाइम पे स्ट्रक्चर्स लेके आने पड़ते हैं, SOPs लेके आनी पड़ती हैं, KPIs, डिसिप्लिन KPIs लेके आने पड़ते हैं, बिकॉज नहीं तो धंधा कैसे चलेगा. मतलब फिर तो ऑल ओवर द प्लेस कुछ ना कुछ लीकेजेस होती रहेंगी. वी आर एबल टू बी वेरी इन्वॉल्व इन द बिजनेस राइट नाउ, वी आर एबल टू बी वेरी इन्वॉल्व विद द पीपल राइट नाउ बिकॉज कंपनी ही अभी करंटली स्केल कर रही है. And I think that's because lean है ना startup अभी currently. That's the beauty of let's say startups in general, which is कि क्योंकि आप involved रहते हो जब तक आपका startup lean है. जैसे ही let's say employee size scale हो जाएगा, जैसे ही scale in terms of revenue बहुत हो जाएगा, जैसे in terms of user ज़्यादा scale हो जाएगा, उस केस में फिर आपको भी structure लेके आने पड़ेंगे, KPIs लेके आने पड़ेंगी, standards लेके आने पड़ेंगे. तो I think we are able to enjoy it right now. जो शायद हम आज कर रहे हैं वो हम 4 साल बाद शायद ना कर पाएं. There's a reality of startup building. There's a reality of businesses, which is businesses will evolve. You need to evolve with the business, and so will the processes maybe evolve as the time evolves. So I think वो scale of business है मेरे हिसाब से. तो MNCs करती हैं क्योंकि structure बहुत ज़्यादा है, अभी scale बहुत ज़्यादा है. हम थोड़े कम structured हैं क्योंकि scale शायद छोटा है comparatively. But don't you think कि अभी बहुत सारी MNCs ना, अब जैसे Adobe हो गया, Google हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो वो अपने कैंपसेस ही ना एक्सपीरियंस कैंपसेस बना रहे हैं. करेक्ट, आई एग्री. ठीक है, आपके पास स्लीपिंग कैप्सूल्स हैं, आपके पास वर्क स्टेशंस हैं, आपके पास एमिनिटीज हैं जहाँ पे आप अपना स्ट्रेस रिलीज कर सकते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज कर सकते हो. करेक्ट. सो दे आर आल्सो दे हैव फाइंड आउट द प्रॉब्लम कि कॉज क्या है. आई एग्री. कॉज ये है, प्रॉब्लम ये है, इसको सॉल्व ये करना है, सोल्यूशन ये है. तो ये वाली चीज भी अब हो रही है क्योंकि अब आप देखो तो जितने भी सुसाइड्स बहुत अटेम्प्ट हो रहे हैं वर्क प्रेशर की वजह से, लोगों को एंजाइटीज इतनी हो रही है, वर्क प्रेशर इतना बढ़ गया है कि लोगों को वीकेंड्स पे भी काम करना पड़ रहा है. इवन दो दे डोंट हैव टू, बट इवेंचुअली दे हैव टू डू द वर्क. वो कोई उसका शॉर्टकट नहीं है, कुछ नहीं है. यू कांट टेक लीव्स, you can't go on vacations, you can't give time to your family. But startup वाले जोन में जब बंदा होता है तो उसके पास वो एक फ्रीडम है. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू कि मेरे पास अगर मेरी टीम से एक बंदा है, मैंने अभी रिसेंटली एक हायर करा था, तो मैं जब भी नया बंदा हायर करता हूँ, इंटर्न या कुछ भी है, तो मैं ना उनको कोई स्ट्रक्चर नहीं देता कि भाई तुम्हें एग्जैक्टली ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाना है, या मैं तुम्हें रेफरेंस दे रहा हूँ, ये रेफरेंस है, ये सैंपल है, ये प्रोडक्ट होना चाहिए और ये आउटपुट है. ऐसा कुछ नहीं है. आई गिव देम फुल लिबर्टी कि भाई ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है, तुम्हें बनाना है, जैसे मर्जी बनाना है बनाओ, रात को बनाना है रात को बनाओ, दिन में बनाना है दिन में बनाओ, दोपहर में बनाना है दोपहर में बनाओ, जैसे मर्जी. इट इज अप टू यू, डू इट ऑन योर ओन. और यू वोंट बिलीव जो वो काम करके लाते हैं ना, मतलब नेक्स्ट लेवल शिट. आई एग्री. वो ऐसा बना के लाते हैं कि मैं कहता हूँ भाई क्या तू आजा ब्रो. करेक्ट. नो डाउट देयर. आई थिंक फॉर श्योर. सो आई गेस ये वाला जो पार्ट है एमएनसीज में स्ट्रक्चर है. आई टोटली एग्री विद दिस थिंग कि जब आप स्केल अप करते हो, जब आपके पास थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज हैं, आपको उनको मैनेज करना है, तो फिर आपको एक ब्रांच बनाना पड़ेगा, आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, कोई स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. बट उस स्ट्रक्चर के चक्कर में ये जो चीजें हैं, जो वर्कलोड है, जो एक्सपेंशन वाले पार्ट है, तो दैट शुड बी एबल टू कंट्रोल द बेसिकली यू नो द एंजाइटी और द इश्यूज दैट दे आर एड्रेसिंग. तो उनको उस पर भी काम करना चाहिए. आई थिंक just treat your employees also like humans. Ultimately they're not machines. They're not machine, like they're working from a human mindset. तो I think empathy बहुत होनी चाहिए. For example, जैसे लेट्स अगर मेरा किसी के साथ भी क्लैश होता है कंपनी के अंदर, तो वो मैं ही समझता हूँ कि वो बंदा खराब है. वो ही मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि शायद आई एम नॉट एबल टू एम्पैथाइज विद द पर्सन इनफ दैट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड हिज और हर इमोशंस की why is this person reacting the way this person is reacting. कुछ तो मोटिवेशन, कुछ तो ट्रिगर हुआ होगा ना जिससे रिएक्ट किया है. Can I maybe if in case I just tone down my tonality, if in case I just take a different direction in terms of my conversation, can this problem be solved? If this problem be solved, तो मैं क्यों फालतू आगे में फंस रहा हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ ना बैठ के, मैं क्यों फालतू टाइम खराब कर रहा हूँ. तो आई थिंक वो थोड़ी सी एम्पैथी बहुत जरूरी है. एंड दैट्स व्हाई जस्ट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इमोशंस स्लाइटली बेटर, having that intellect, having that maturity, having that calmness ki
सामने इंसान ही काम कर रहा है, उसको अगर आप इंसान की तरह काम करवाओगे, थोड़ा सा एम्पैथाइज करके, वो काम कर लेगा। कुछ केस सिनेरियोज में ऑब्वियसली वो नहीं काम करता है, तो चिल्लाने से बेटर है जस्ट ले ऑफ द पर्सन, मतलब दैट्स मच इजियर। अगर आपने सब कुछ ट्राई एंड टेस्ट कर लिया, आपको लग रहा है कि यार इट्स नॉट रियली वर्किंग आउट, lay them off. Maybe they're not really meant for this company, or they're not really meant for this structure, but they might be excelling, let's say, if in case they come get to some other structure. किसी गलती नहीं है, just that mutually things are not really working out. So that's the ideology maybe that we operate on, कि rather than shouting, rather than showing frustration or anything, कि empathize करके obviously कभी कभी निकल जाती है frustration, क्योंकि आपके पास भी stress है, आप भी human हो, आप भी कोई वो संत नहीं हो कि let's say जो हमेशा काम रहेगा, but I always try to, let's say, even if in case I lose my temper at some point, I just try to rationalize that thought कि क्यों temper lose हो रहा है, क्यों वो इंसान बात नहीं समझ पा रहा, क्यों वो काम नहीं कर पा रहा, क्या motivation missing है, क्या trigger हो रहा है, can I empathize with that trigger, can I come to the same base and have the conversation, can I strike that motivation जिससे शायद वो काम कर लेगा. If yes, then the problem तो is solved, no. तो क्यों आप कॉम्प्लेक्सिटीज में जा रहे हो, आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लो ना बैठ के, बहुत सिंपली. तो दिस इज हाउ, लेट्स से, आई थिंक थिंग्स कैन बी परसीव्ड बेटर. Do you believe that being a founder, and when it comes to communication, when it comes to people management, when it comes to EQ, you understand people very well, how to communicate with them, or how to understand a basic human being, like what are the demands, क्या वो चाहता है, क्या problems आ रहे हैं. तो ये चीज पहले when you were an employee, and now you are providing employment. Correct. What is the shift? Correct. यार, I think बहुत बड़ा है, बहुत rapid shift होता है, क्योंकि आपको इतने डायनेमिक लोगों के साथ डील करना पड़ता है, और इतने डायनेमिक इमोशंस के साथ डील करना पड़ता है, बिकॉज नाउ एवरी लॉस इज नॉट देयर लॉस, their loss is also a company's loss. Correct. The company's loss is ultimately your loss. Your loss. तो आप let's say आप हर एक ह्यूमन इमोशन को आपके एम्प्लॉय के, जिससे लेट्स से वो शायद रैशनली ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, उससे अल्टीमेटली बिजनेस का लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से लेट्स से आपका लॉस हो रहा है, तो आप हर चीज को, आप समझ रहे हो, सब कुछ वैसे अटैच होता है. लेट्स से एज एन एम्प्लॉय में भी आई वाज वर्किंग, आई वाज की ओके, जो भी फट रहा है फटने, तो मुझे क्या, मतलब मैं तो अपना वर्टिकल काम पे फोकस करूंगा ना. As a founder you cannot do that. As a founder, let's say maybe someone is not in a good headspace, and maybe a manager is shouting maybe on their reportee, the reportee might just go off and there might be a new problem that would come in कि फटाफट हायर करना है, और टाइम फिर वहां पे चले जाएगा. डू आई हैव द टाइम टू इन्वेस्ट देयर? मे बी नो, बट आई विल नीड टू इन्वेस्ट दैट टाइम. तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग फटाफट आती है. फिर वहां पे इमोशनल क्वेश्चन भी आपको हाई रखना पड़ेगा, वहां पे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हाई रखनी पड़ेगी, वहां पे आपको एम्पैथी भी हाई रखनी पड़ेगी. सो दैट्स वेयर डेफिनेटली आई फील इट्स आई हैव डेफिनेटली बिकम अ बेटर पर्सन इन टर्म्स ऑफ पीपल मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीपल बेटर, इन टर्म्स ऑफ माई EQ. आई थिंक दैट्स इम्प्रूव्ड अ लॉट एंड दैट्स गॉन सो हाई. मेरा टेम्पर बहुत हाई होता था, बट अब तो बहुत ज्यादा फोर्सफुल काम करना पड़ता है टेम्पर को. तो आई थिंक यू डेफिनेटली इवॉल्व एज अ फाउंडर, तो फॉर श्योर, बिकॉज it's 95, actually 98% people management, just running a service company, at least, for example, in our case scenario. Yeah. And then 2% all the processes, etc. But it's 98% managing the people in the right way. It can be your customers, it can be your users, it can be your stakeholders, it can be your employees, anyone for that matter of fact. Yeah. As working in a education-based industry, and basically working with students, जो भाई एक देश की यूथ है, तो मेरे को लगता है आप उससे ज्यादा बेटर तरीके से कनेक्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ इवॉल्विंग एज अ ह्यूमन. करेक्ट. क्योंकि आपको उनके साथ बात करनी है, तो यू हैव टू कीप अप विद द ट्रेंड्स. करेक्ट. आपको मार्केट में क्या चल रहा है नया, वो पता होना चाहिए, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू गेट देयर जॉब्स. करेक्ट. वो क्या बोल रहे हैं, क्या वो बात कर रहे हैं, तो हमें समझ ही नहीं आएगा क्या चीजें चल रही है. करेक्ट. तो बेस्ट थिंग तो ये है कि आप उनसे रेजोनेट कर सकते हो. करेक्ट. जो प्रॉब्लम्स आपके साथ आई हैं, वो प्रॉब्लम उनके साथ ना हो, तो उनसे बात कर सकते हो. आप बता रहे हो कि आपका ऐसा बॉन्ड है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल चीज है, कि आप स्टूडेंट्स को लेके जा रहे हो, डिनर पे बुला रहे हो, घर पे वो लोग आ रहे हैं. तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड दैट यू आर क्रिएटिंग विद योर ओन कोहोर्ट, विद द पीपल इन योर कैंपस. तो पीपल स्टार्ट ट्रीटिंग इट एज देयर ओन प्रोडक्ट. करेक्ट. आई एग्री. फॉर एग्जाम्पल, अगर कल को कोई भी बंदा, जैसे अभी कहीं पे अच्छी कंपनी में जाके प्लेस हो रहा है, तो ही एक्चुअली वांट्स कि यार मेरे ही लोग आए. करेक्ट. ठीक है. एंड आई रियली वांट टू पुश देम कि अगर 19-20 भी है ना, ठीक है, चल जाएगा यार, आई विल मैनेज, बट आई वांट दिस पर्सन इन माय कंपनी टू वर्क विद. करेक्ट. बिकॉज़ जितने ज्यादा मेरे लोग होंगे, उतने ज्यादा मेरे को फायदा है. करेक्ट. आई एग्री. मेरे पास ना एक आई गेस एक इमोशनल टच होगा
कि अगर मैं आपको काम बोल रहा हूँ या कुछ भी कह रहा हूँ तो वो बंदा भी सुनेगा कि यार नहीं यार, करेक्ट, ये एक्चुअली 100% इज थिंकिंग अबाउट माय ओन Makes करियर, मेरे बारे में सही चीज बोल रहा हूँ. करेक्ट. आई थिंक इवन बियॉन्ड दिस, मतलब हम तो उसके लिए करते हैं. जैसे वीकेंड्स पे क्या करोगे, वीकेंड्स पे तो अपने बॉयज से मिलोगे या फिर कुछ पार्टी कर लोगे. पार्टी में करता नहीं हूँ. बॉयज से मैं 2-3 हफ्ते में एक बार मिलता हूँ क्योंकि हमारा प्लान तभी बनता है, तो मेरे वीकेंड्स खाली होते हैं. और मोनोटोनस इतना काम हो जाता है तो आप ये तो सोचते हो कि यार कुछ तो अलग हो. तो फिर वीकेंड्स पे द बेटर प्लान कैन बी मे बी दैट यू कैन गो आउट विद अ स्टूडेंट फॉर अ डिनर, एंड आई एंजॉय इट, एंड दैट्स व्हाई लेट्स से आई डू इट जस्ट बिकॉज आई एम एंजॉयिंग इट. जब एंजॉय नहीं करूंगा शायद नहीं करूंगा. अभी तो मजे आ रहे हैं करने में तो मैं कर पा रहा हूँ. तो सिंपल है, मतलब आई थिंक कोई इससे कोई आउटकम नहीं है. इससे बस सिंपल है कि आई वांट टू हैव फन माय वीकेंड. My fun on the weekend is maybe going out on a dinner or a lunch with a student and brainstorming on his idea or brainstorming on कि अच्छा तू कैसे outcome better कर सकता है, and just giving him some ज्ञान there. तो वो बस मेरे को fun आता है इसलिए मैं चले जाता हूँ अभी के लिए. और let's say इसलिए जैसे students आ जाते हैं तो it's more than an outcome. It's about just fun to do that, and let's say the reason for why we are doing it. Parties with students is fun because literally same age group तो है. मैं 26 हूँ तो students 22 साल के हैं, 4 साल का difference है. कोई 25 साल का है, कोई मेरे से बड़ा भी है. तो like it's a community which is like all of them are in the Gen Z or millennial generation. And the same age group. So they all connect together, and that's why let's say we connect with them, and hence we just click together well, and hence we party together well. So that's very very simple, like basics, nothing more than that. अगर अभी कोई 22, 21, 20 years या कोई beyond that, correct, कोई अभी देख रहा है फाउंडर एंड ही एक्चुअली गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम योर आइडिया कि यार एक्चुअली मैं भी कर सकता हूँ ये आगे जाके, अगर मुझे भी बिल्ड करना है तो क्या ऐसी 3 चीजें होंगी दैट यू वांट टू गिव, वो वाला जो ज्ञान जो देना चाहते हैं हम, वो क्या चीजें रहेंगी? Don't think about overly aspirational ideas. Think about 1 करोड़ कैसे आएगा, पहले 10 लाख कैसे आएगा, पहले 50 लाख कैसे आएगा, उसको पहले फिगर आउट करो. Have a plan for 50 crores also, but right now think about year 1. Year 1 मेरे को कितने ईयर रेवेन्यू पे क्लोज करना है. 1 करोड़ है, 50 लाख है, 10 लाख है, 12 लाख है, 15 लाख है, उसको चेस करो. नंबर 1, which is break down your bigger goal into smaller goals and only focus on the smaller goal at once. But don't forget the bigger goal also. Number 2, there is no replacement to hard work, which is आप कितने भी स्मार्ट हो, अगर आप सुबह उठ के काम नहीं करते हो और आप डिसिप्लिन तरीके से हर रोज काम नहीं करते हो तो उसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है, which is work extremely hard. And number 3, just stay consistent at it, which is there are gonna be burnouts for sure, there are gonna be things that will break for sure, there are gonna be times जब you'll scratch your energy कि क्यों धंधा शुरू किया था मैंने, but रुक जाओ, सब कुछ सेल थ्रू हो जाएगा, सब कुछ टेम्पररी है. बस just don't lose your rationality, just solve that problem very rationally. There is a solution to it for sure. There lies a solution. Just give it some time. If you're anxious, go to the office at 5 a.m. Do anything, but the solve will come out. So just be consistent. Be very hardworking. Break down your longer or your long-term goal into shorter goals, and just try to achieve that. That's all. Great. That's all for me. So yeah. So I guess let's end this conversation on this note only. 100%. And that was really amazing. I had a really good time with you. Likewise, I think Mridul, so good talking to you. Love your energy. And I think same connect here. Just wishing you all the luck for all the good things that you're doing here. Same, likewise. Great initiative. Just keep bringing in even better people here so that it helps the audience, your audience specifically, to be able to garner a lot more good insights. I'm very sure this will sail through. Absolutely. Wishing you all the luck. So yeah. So this was the first episode with Nikhil Gaur, and we really had a best time. So we will keep on asking him to come back on the show again and again. बहुत सारा ज्ञान वाली बातें भी होंगी, मजे वाली बातें भी होंगी, फन भी आएगा. So let's keep the energy going and we will meet you in the next one. अगर आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो, कोई भी चीज जो आपको कनेक्ट करी हो, जो आपको रिलेटेबल लगा हो, तो प्लीज कमेंट डाउन. Please subscribe our channel, The Mridul Parmar Show, and we will be back with another inspiring guest. Thank you so much. Bye-bye.